Hello children, we are going to begin the chapter Evans Tries an O-Level written by Colin Dexter. It is given in book Vistas for class 12 prescribed for CBSE by NCERT. Now let's begin reading the chapter. All the best because it is a very long chapter, but I'll try to keep it as simple, as quick and also as clear as possible. Dramatis personae. This is the list of characters in the story. I will not be reading this. Please read it yourself. जिन्होंने मेरी वीडियो अब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली सुनी है या रिवीजन वाली सुनी है, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स वी टॉक अबाउट. एक माइनर कैरेक्टर है मिस्टर बेल का. ही डजंट डू मच. ही इज़ अ डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. उसका कोई खास रोल है नहीं स्टोरी में, सो आई एम लीविंग दैट. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. तैयारी पूरी है कि एवेंस escape ना करे, but he does that. हम सब जानते हैं कि एवेंस ने 3 बार ही पहले ही prison तोड़ के वहाँ से भाग चुका है. तो it was in early March when the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison. Underline this part. It is slightly unusual request. Unusual क्यों थी? Why? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, वो भी जर्मन का एग्ज़ाम, और भी एवंस जैसा बंदा जो 3 बार भाग ही चुका है, तो वो एग्ज़ाम ऐसा करे, और वो इतना सीरियस टाइप का पढ़ने वाला तरह का इंसान है नहीं. दैट इज़ वाई इट वॉज अनयूजुअल. गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प. जस्ट द वन फेलो यू से. दैट इज chap called Evans. Started night classes in O-level German last September. अब मार्च चल रहा है, सितंबर से वो क्लासेस लगा रहा है. तो आप जरा मंथ्स काउंट करिए. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ से ज़्यादा उसने क्लासेस लगाई हैं. मतलब 6 महीने से उसको एक टीचर पढ़ाने आ रहा है. बाद में हमें पता चलेगा कि वो टीचर उसका फ्रेंड ही था. सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. वैसे ये सब हम जानते हैं कि ये एक उनकी मिस्टेक थी. दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक दैट दे अलाउ हिम टू बी इन कॉन्टैक्ट फॉर 6 months with a person every day possibly who comes to teach him German, and later on we come to know that he was his friend only and he is the one who helped him plan his escape so much. So here we are doing scene 1. It is secretary's permission granted that they allow Evans to sit for the exam, and the secretary is talking to the governor about the preparation that they would require for the exam of O-level for Evans. Now, is he any good? He was the only one in the class. एक तो पहली बात, एक बाहर के टीचर के साथ अकेला था. सो यू कैन से ही इज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. इंडिविजुअल ट्यूशन होती है तो क्या होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. Really would have cost him a packet if he had been outside. Well, let's give him a chance, shall we? That's jolly kind of you. What's exactly the procedure now? Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name, you say? Evans. James Roderick Evans. It sounded rather grand. Just one thing, Governor. He's not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record or anything like that, but... अब सेक्रेटरी उससे बात करके बोलता है कि कहीं वो वायलेंट टाइप का बंदा ना हो, ऐसा वाला क्रिमिनल ना हो, क्योंकि एग्जाम में फिर उन्हें इसी हिसाब का कोई इन्विजिलेटर भेजना पड़ेगा. प्रॉबली दिस इज़ व्हाट दे थिंक, व्हाट ही इज़ थिंकिंग. अब यहाँ पे हमें देखना है कि एवंस के कैरेक्टर के बारे में गवर्नर क्या जवाब देता है. नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस. क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी. बिट ऑफ अ कार्ड रियली. वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट. Imitations? You know the sort of thing? Mike Yarwood stuff? No, he's just a congenital kleptomaniac, that's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He'd look after that particular side of things himself. अब यहाँ पे 2-3 बातें निकल के आती हैं. पहली बात, एवंस वॉज वेरी गुड इन इमिटेटिंग पीपल. वो लोगों की नकल उतारने में बड़ा अच्छा था. पॉइंट आपको याद कराऊंगी. इफ़ यू रिमेंबर, एवंस मकलेरी की एक्टिंग करके मकलेरी बन के वहाँ से निकला. जब इन्हें पता है कि इंसान बहुत अच्छा है इमिटेशंस में, इनको पहले अलर्ट होना चाहिए कि एवंस कुछ और बन के तो नहीं कहीं निकल रहा. नंबर 1. दूसरा, ही वॉज अ क्लेप्टोमेनियक. उसको आदत, क्लेप्टोमेनियक आर दोज पीपल हु हाइड थिंग्स, हु पिक अप थिंग्स एंड दे हाइड इन देयर पोजेशन. एवंस शार्प ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे अपने पास छुपा के रखता था. उनको कहीं ना कहीं यूज़ करता था बाद में जेल तोड़ के भागने के लिए. प्रिज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज अ रूम वेयर. अब वो कहता है कि आप अलग से इसका रूम अरेंज करो. तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस में अरेंजमेंट 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट्स लिखे हैं, जो स्पेशल अरेंजमेंट्स प्रिजन अथॉरिटीज़ ने किए फॉर एवंस, सो दैट ही डज नॉट कमिट
एन एस्केप फ्रॉम प्रिजन. तो क्या अरेंजमेंट किया? ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन. इफ़ यू नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सेट द एग्जाम इन देयर. दैट्स फाइन. उसका सेल भी डीविंग में था, आइसोलेटेड किया गया था उसको. तो ये एक पहला अरेंजमेंट है. एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट्स फाइन. येस येस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे? The two men chuckled good naturedly, and the secretary had the final thought. At least there's one thing. You shouldn't have much trouble keeping him incommunicative, should you? तो सेक्रेटरी ने बोला कि पहले तो उसको अलग से सेल होना चाहिए उसका. दूसरी बात, एक पार्सन को, एक प्रीस्ट को बुलाएंगे चर्च से जो कि उसकी इन्विजिलेशन करेगा. और थर्डली उसको इनकम्युनिकेटिव रखना है. अरेंजमेंट ये है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको अलाउ नहीं करना कि वो किसी और से बात करे. तो ये अरेंजमेंट से. अब इसमें एक और वो मिस्टेक कमिट कर रहे हैं. क्या है? दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ पार्सन, एंड पार्सन, दीज पीपल, दे आर वेरी you can say, you know, they are not violent sort of, and you know, these people can be anybody can impersonate them. The governor chuckled politely once more. He reiterated his thanks and slowly cradled the phone. So there's a fact they could not keep him incommunicative till now. And now, 2-3 days before exam, what is the use of keeping him incommunicative? He had been in communication with a person who is the teacher, and he used to come from outside. And for so many months, he was in perfect communication with that person. So this is the thing. I hope you're liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe, and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Now scene 2 comes. This is the visit to Evan's cell. अब यहाँ पे शुरू होता है वो वाला पार्ट जब मैंने आपको बताया था कि अब they are going to prepare before the exam. क्या क्या वो करते हैं एवंस के एग्ज़ाम के लिए. Evans the Break, as the prison officers called him. उसका नाम ही Evans the Break था क्योंकि thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. तो अब क्योंकि वो इतना लोग उसको सोचते थे कि वो तो जेल तोड़ के भाग ही जाता है, तो नॉर्थ साइड पे नहीं, उसको डीविंग में डाल दिया गया था और अब वहाँ पर वो रहता था और ऑक्सफोर्ड जेल का नाम है. The governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. और गवर्नर ने श्योर किया था कि वो कहीं उन तक फिर से बदनामी ना लेके आए, उनको डिस्ग्रेस ना मिले. Not that Evans was a real burden, वो burden नहीं था, but he was just a persistent nagging presence. But उसका होना ही एक nagging presence थी. उसके होने से हमेशा ये लगता था कि prison authorities are weak because every time he used to outshine them, every time he used to prove that he was smarter than the entire lot of the prison authorities. तो इसलिए उनको इससे बड़ी चिढ़ थी. He had been all right in Oxford though. The governor would see to that, would see to it personally. अब तो गवर्नर का पर्सनल इंटरेस्ट था कि कहीं वो भाग ना जाए. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. Just a slight possibility. सबको पता था कि एवेंस के, everyone knew, देखो मैंने यहाँ रेड बॉक्सेस में लिखा है, everyone knew that there was very less possibility that Evans was serious for learning German, but they could do nothing because it was a matter of human rights. They could not deprive anybody of education during imprisonment. Very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in a heavily guarded recreational block just across from Deaving. Deaving वहाँ पे है जहाँ पे एवेंस का एग्ज़ाम होना था. इसकी यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी. तो उसका जो टीचर था, ये मैंने फिर से मिस्टेक लिखा क्योंकि वो इसका ये फ्रेंड था, यह हमें बाद में पता चलता है. Guten Glück, Evans. Pardon, I said good luck. Good luck for tomorrow. अब एवेंस को इतनी जर्मन भी नहीं आती, उसको एक लाइन गुड लक भी नहीं समझ में आ रहा. Oh thanks sir, I mean Dankeschön. You haven't a cat in the hell's chance of getting through, of course, but I may surprise everybody, said Evans. अब एवेंस यहाँ पर इंडिकेट करता है कि शायद मैं तुम सबको हैरान कर दूँ. अब वो हैरान कैसे करने वाला था हम सब जानते हैं. उसका सरप्राइज पास होने वाला सरप्राइज नहीं था, उसका सरप्राइज था So Evans says that he is going to surprise everyone. At 8:30 the following morning, अब उसी दिन जिस दिन एग्जाम था, मॉर्निंग में सुबह 8:30 क्या क्या हुआ मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, एक बार उनको रिकॉल कर लीजिएगा. Evans had a visitor. Visitors 2 थे. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. Dirty कपड़े पहने थे एवेंस ने, and he stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor.
जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, ये आप पॉइंट लर्न करेंगे. एंड ही एंड एवंस आर ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज. वाई? बिकॉज एवंस हर बारी भाग जाता था. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly looking man only recently recruited to the profession. So he was a very serious person. तो जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर था, सेकंड आया ऑफिसर स्टीफन्स जो कि सीरियस लुकिंग, बड़ा ही सीरियस वाला ऑफिसर था. ये दोनों आए. जैक्सन नॉडेड कर्टली. एंड हाउ वाज लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन. उसको आइंस्टाइन क्यों बोला मजाक में? आइंस्टाइन जर्मन था और जैक्सन ये एवंस भी आज जर्मन का एग्जाम देने लगा है, तो उसको मजाक में वो उसने आइंस्टाइन बोला. वॉजंट ही अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन? आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन. तो फिर से उसने एक हेटेड वाला पॉइंट बोला कि ही वॉज अ ज्यू. एवंस फेस वॉज अनशेवन, अनटाइडी था. ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू जस्ट बस्ट इन. तो एवंस को पता है कि जैक्सन उसको बोलेगा कि यू शुड बी नीट एंड टाइडी. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he's finished scraping that ugly mug of his. Clear? One of these days he'll do us all a favor and cut his bloody throat. अब यहाँ पे जैक्सन ने स्टीफन्स को ऑर्डर दिया कि ही हैज़ टू सीज, ही हैज़ टू टेक अवे द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक रेजर फ्रॉम एवंस पोजेशन. ये भी उन्होंने एक अरेंजमेंट किया ताकि वो कोई एस्केप प्लान ना कर सके. नेक्स्ट. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Jackson इतना experienced था that he had been a warrior, he had been an achiever in the Second World War. And Evans was looking at him, this man who was standing straight in front of him. And he was ऑस्ट्रक. एवंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. अब उसको समझ, क्योंकि उसको अभी समझ में आया कि उसके पास जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स पहले पड़े हुए थे वो किसने उठाए? वो जैक्सन ने सीज किए थे. मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? एवंस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स. एंड योर नेल फाइल टू. लुक. फॉर अ मोमेंट एवंस आईज स्मोल्डर्ड डेंजरसली, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम. तो एवंस को गुस्सा आया, लेकिन जैक्सन तो उसका पहले दुश्मन था. जैक्सन वॉज रेडी. अब एवंस हैड एन ऑब्सेशन ऑफ मेंटेनिंग ब्यूटी ऑफ हिज हैंड्स एंड he was always fond of sharp objects like nail scissors and nail cutter and such things. Look, orders of the governor, Evans. He leaned forward and leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? Evans shrugged his shoulders lightly. The crisis was over. अब वो कुछ कर भी नहीं सकता. उसने बोल दिया कि गवर्नर के ऑर्डर्स हैं कि तुम्हारे पास कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं रह जाएगा. तो जैक्सन repeatedly demonstrates hatred against Evans. Even then, he is going to permit him one thing. What is that? Let's see. You've got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. Me, Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. Kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all and that. तो अब वो क्या बोल रहा है? उसने अपनी हार्ट के ऊपर हाथ रखा और वो एवंस को बोलने लग गया, देखो यही तो है एक चीज़ जो मेरे लिए लाइफ में थोड़ी सी लकी है. मतलब आप सोचो एग्ज़ाम है और इतनी टेंशन है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मुझे ये हैट पहने रहने दो. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew. और एवंस को पता था कि कहीं ना कहीं जैक्सन बड़ा ही दिल का अच्छा इंसान है, उसको सब प्यार से बोलोगे तो वो मान जाएगा. अब ये भी प्रिजन अथॉरिटीज़ की एक मिस्टेक थी, उन्होंने उस हैट को पहने रखना जैक्सन को अलाउ किया, एवंस को अलाउ किया. यहाँ एवंस की भी एक कैरेक्टर की बात देखने वाली है. ही नोज हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल्स गुडनेस. That may be because he doesn't argue, he remains polite and does not misbehave. He observes people better. He does not retaliate, he does not react. And when you do not react, when you do not, give an overreaction of situation, you become more patient, more observant, and by you grow more intelligent about how to behave in the required way at the right time. Just this once, then Shirley Temple. If there were one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. तो अब
उसने उसको शर्ली टेम्पल क्यों बोला? शर्ली टेम्पल इसलिए बोला क्योंकि एवंस के बाल लंबे लंबे थे। शर्ली टेम्पल एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी जिनके लंबे लंबे बाल थे, तो उन्होंने उसको छेड़ के बोला शर्ली टेम्पल, और एवंस को अपने लंबे लंबे बालों का बहुत शौक था। और गेट दैट शेविंग, और अपने अपनी शेव करो। अब एवंस करेगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। उसके पास सिर्फ रेज़र है, शेव करने के लिए उसको रेज़र दिया गया है। उसको बोला गया हैट पहननी अलाउड है। एवंस को लंबे बालों का शौक है, पर उसको ये बाल काटने हैं और उनको छुपा के रखना है हैट के नीचे। काटने क्यों है? क्योंकि एक आदमी मक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर है, वो जिसने आना है वहाँ पे, उसके छोटे छोटे बाल होते हैं। अब अगर एवंस अपने बाल छोटे कर लेगा, सबको पता लग जाएगा कि एवंस के बाल भी छोटे हैं, तो वो अचानक से अपने बालों को छोटा छोटा काटेगा रेजर से, जो कि साफ साफ अच्छी तरह से नहीं कटेंगे, और उनको हैट के नीचे छुपा के रखेगा, और उसके बाद वो मक्लेरी जैसा बन जाएगा बाद में वहाँ से भागने के लिए। 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मक्लेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट। अब ये सुनो, ध्यान से सुनने वाली बात है। मक्लेरी अपने घर से चल पड़ते हैं। स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टूवर्ड्स कारफैक्स। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क किया हुआ है। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल। उस दिन बहुत ठंड थी। लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट इन्होंने पहना। शालो क्राउंड क्लेरिकल हैट पहनी। क्लेरिकल हैट एक ब्लैक कलर की प्लेन हैट होती है। Provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. तीसरा उन्होंने पहना spectacles जिसके ऊपर बरसात पड़ रही थी। In his right hand he was carrying a small brown suitcase. ये भी उन्होंने कैरी किया। इसमें क्या क्या था? Contained all that he would need for his morning duty. उनकी ड्यूटी के काम की चीज़ें, including a sealed question paper envelope, yellow invigilation form, special authentication card from the exam board, paper knife, Bible. क्यों बाइबल? ही वॉज टू स्पीक द वुमेंस गिल्ड एट द आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रुथ। तो एक बाइबल भी ली, ये क्योंकि उनको दोपहर को प्रेयर पे भी जाना था, ये प्रूफ हो गया। एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स। तो ये सारा सामान उन्होंने उठाया और वो आ गए। द 2-hour एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables. उधर एवंस के रूम में तैयारी चल रही है। 2 tables, square tables को सेट किया गया opposite to each other in a narrow space, पतली सी जगह में, between the bunk, on one side and on the other side a distempered stone wall. तो 2 स्टूल आमने सामने रखे गए। नेक्स्ट, स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल। स्लाइटली लेस जो इतनी बुरी नहीं थी वो रख दी गई मक्लेरी के लिए। विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर। अब ये जो वाली जो मक्लेरी की चेयर थी, ये दरवाजे के पास को थी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लैडी। और जैक्सन ने फिर से आके एवंस को डांट दिया। एवंस टर्न्ड एंड नॉडेड एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन-अप्स। अब वहाँ पे दीवारों पे कुछ ना कुछ उसने लिखा हुआ था, चिपकाया हुआ था। तो उस जैक्सन ने बोला ऑफ कि इन सबको उतार देना। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनी वे। अ मिनिस्टर इजंट ही द चैप कमिंग टू सिट इन। अब यहाँ पे एवंस ने जैक्सन को पूछा कि मुझे इन्विजिलेशन के लिए एक मिनिस्टर आ रहा है। मिनिस्टर वहाँ पे प्रीस्ट को बोला जाता है, जो चर्च के पुजारी होते हैं उनको बोला जाता है। तो वो कहता है एंड हाउ डू यू नो दैट? asked Jackson quietly. Well, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. तो सबको यहाँ पता लग गया कि एवंस ने पहले ही फॉर्म साइन करते टाइम देख लिया था कि उसका इन्विजिलेटर एक मिनिस्टर होगा, एक पार्सन होगा, एक प्रीस्ट होगा। नंबर 1, फिर भी मैंने यहाँ पे मिस्टेक लिखा है। यहाँ पे इट वॉज अ मिस्टेक। उनको पता लग गया कि इसको तो सब कुछ पहले से ही पता है, इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। तो प्रिजन अथॉरिटीज़ की ये भी एक मिस्टेक थी। नेक्स्ट, Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white lather. तो Evans razor से अपना शेव कर रहा था। Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. Not a very neat job, conceded Jackson. तो Jackson ने बोला, उसने पूछा कि मेरे को यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उसको थोड़ा कम ही टाइम हुआ था इस सेल में शिफ्ट किए गए। और दूसरा आप ये देखो कि उसकी जो शेप थी कोई बहुत नीटली नहीं की गई थी। दे आर नॉट ऑनेस्टली थिंकिंग आई एम गोइंग टू ट्राई टू, दे आर टेकिंग नो चांसेस एवंस। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। हु इज गोइंग टू लिसन इन? आई टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन, लैडी। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, एंड नॉर डू आई। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक एवंस, सो कीप योर नोज क्लीन। Clear? He walked towards the door.
Evans nodded. He'd already thought of that, and number 2 handkerchief was lying already reading on the bunk. नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन. यहाँ पे 2-3 बातें हमने नोट करनी है. एक हैंकी तैयार था, आप बाद में देखोगे दिस हैंकी इज गोइंग टू बी यूज्ड. तो बाकी कोई ज़्यादा पॉइंट काम का नहीं है. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? Good luck, old son. In the little lodge just inside the prison's main gates, Reverend McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with a silent prison officer across the excise yard to D Wing, where he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them, the heavy inner door the same, and McCleary was handed into Stephen's keeping. यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैंने ब्लू में मार्क किया है, किसी ने भी McCleary की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं की. सेकेंडली, अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं डीविंग में कितने सारे डोर्स लॉक किए गए हैं, सो इट देयर वाज एन एक्स्ट्रा टाइट सिक्योरिटी. इसको तोड़ के कोई भी कैदी भाग नहीं सकता. गेट द रेजर, murmured Jackson. Stephens nodded. Well, keep your eyes skinned clear. Stephen nodded again, and McCleary, his feet clanging up the iron stairs, मैंने आपको बताया था कि he walked awkwardly, followed his new guide and finally stood before a cell door, where Stephens opened the peephole and looked through. That's him, sir. Evans, facing the door, sat quietly the farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. तो अल्टीमेटली मक्लेरी एवंस के सेल में पहुंच गया और स्टीफन जो कि सेल के अंदर था उसने उसको एंट्री अलाउ की. इसमें और जो कोई खास पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है.